Hello students, as we have completed chapter number 8, today we will start chapter 9, cooking food. Cooking food, that means किस तरह से food को cook करते हैं. Children, all living things need food to survive, and the food is the fuel of our bodies. It gives us energy to do work. We eat many different kind of foods like rice, wheat, fruits, pulses and vegetables. Some of us also eat fish, eggs and meat. Food keeps us healthy and strong. It helps in repair of those parts of our bodies which are weak or hard. We eat breakfast, lunch and dinner at proper times every day. So children, in this chapter we'll study about raw food, cooked food, why we need to cook food, and ways of cooking food like roasting, deep frying, baking, and also we will study about what cooking utensils that are used in kitchen, and also we will study about heating sources and preparation of some food items. Okay, we all need food to live because food gives us energy to work and play, and second one is essential for our growth, keeps us healthy and protects us from disease. फूड हम लोग क्यों ईट करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स गिव्स अस एनर्जी. ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, खेलने के लिए. ये हमारी ग्रोथ में हमें हेल्प करता है. ग्रोथ जस्ट लाइक आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी बॉडी जब ग्रो करती है इसमें आपकी हेल्प करता है, और ये हमें फिट रखने में, हेल्दी रखने में और डिजीज़ से भी आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. ओके, सो दैट इज़ वाई वी ऑल नीड फूड टू लीव. हम लोगों को फूड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विदाउट फूड वी कैन नॉट लीव. रॉ फूड, व्हाट इज़ रॉ फूड? रॉ, that means that's a fruit and some vegetables are eaten raw. Raw means kacha, ठीक है, and they are called raw food. We must wash these fruits and vegetables thoroughly before cutting them. When we wash them after cutting, many minerals and vitamins get washed away. So children, we must wash the fruits and vegetables before using. उसे यूज़ करने से पहले वॉश ज़रूर करना है. विदाउट वॉशिंग डोंट यूज़ इट, ठीक है. और व्हेन वी वॉश देम आफ्टर कटिंग, जब हम उसको कट करके वॉश करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें से विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो सब वॉश हो जाते हैं, उसके साथ धुल करके निकल जाते हैं. सो वी मस्ट वॉश बिफोर कटिंग. कुक्ड फूड, कुक्ड दैट मीन्स उसे कुक किया गया है, पकाया गया है. सो यू नो दैट द मोस्ट ऑफ द फूड आर कुक्ड before we eat. For example, rice, wheat, maize, pulses, fish, flesh, potato and brinjal need to be cooked before eating.
So children, these type of food items we cannot eat raw, like rice, wheat, maize, pulses. We have to cook these food items, and after to we'll we eat. तो इसे हम क्या कहते हैं? कुक्ड फूड, क्योंकि इसे कुक किया गया है, इसे पकाया गया है. वाई वी नीड टू कुक फूड? वाई वी नीड, हमें क्यों ज़रूरत है फूड को कुक करने की? कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी. यस, कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी. वो फूड को टेस्टी बनाता है. कुक जब हो जाता है, जब खाना पका दिया जाता है, तो इट्स मेक्स टेस्टी, एंड इट ऑल्सो मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. वो सॉफ्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने में आराम से डाइजेस्ट हो जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो किल्स द जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन रॉ फूड. जब रॉ फूड में कोई भी जर्म्स रह गए हैं, अगर किसी तरह से वो प्रॉपरली वॉश नहीं हुआ, तो अगर उसमें जर्म्स रह गए हैं, तो कुक होने से क्या होता है, उसके जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं. ओके चिल्ड्रन, डू यू नो फूड इज़ मेड ऑफ nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. These nutrients are helpful to us in different ways. Besides nutrients, food also contains roughage and water. Food में water भी शामिल है. ऐसा नहीं है कि without water we eat complete food. So the roughage and water also contains food. Children, most of the body is made of water. Although water is not a nutrient, it is most essential for all body functions. So we should drink plenty of water daily to balance the loss of water, and eating juicy fruits and vegetables also provides water to the body. Okay, some vegetables like carrot, radish and pea can be eaten raw or cooked. ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जो आप रॉ भी ईट कर सकते हो और कुक करके भी ईट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी वेज ऑफ कुकिंग फूड. व्हाट आर द वेज? different ways for cooking food. First one is roasting. We cook flesh, paneer tikka and popcorn by roasting. We also make chapati by roasting. Chapati you understood very well. What is called roasting? Roasting किसे कहते हैं? Roasting that means सेंकना, है ना, डायरेक्ट जिसको फ्लेम से रोस्ट करते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर इज़ अ रोस्टिंग प्रोसेस इज़ डन. हो रहा है यहाँ पर रोस्टिंग. तो रोस्टिंग मीन्स होता है सेकना. आपकी मदर जो चपातीज़ बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, वो रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू कुक होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वे ऑफ कुकिंग फूड इज़ बॉइलिंग एंड स्टीमिंग. वी कुक rice, potatoes and pulses by boiling and steaming. Here boiling and steaming. Steaming भाप को कहते हैं, steam करना. और through the steaming your mother is making rice, चावल बनाती हैं. वो boiling से भी बनता है, दोनों प्रोसेस से बनता है. अगर जो भी फूड आइटम है इसमें से, जस्ट लाइक राइस, पोटैटो, पल्सेस, ये मोस्ट ऑफ द दिस टाइप ऑफ पल्सेस और ग्रेन्स, और ये जो पोटैटोज़ हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, इसको बॉइलिंग और स्टीमिंग प्रोसेस के थ्रू पकाया जाता है. ओके,
Third one is deep frying. Deep frying, that means we cook puri, pakoras, samosas and french fries by deep frying. Deep frying, here in the picture, deep frying पूरी तो आप लोग सभी ईट करते होगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड प्रॉपरली व्हाट इज़ डीप फ्राइंग. व्हाट इज़ द प्रोसेस डीप फ्राइंग, डायरेक्ट जिसको ऑयल में फ्राई करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीप फ्राइंग कुकिंग. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज शैलो फ्राइंग. शैलो फ्राइंग, दैट मीन्स नॉट डीप फ्राइंग. इसमें भी हियर इन द पिक्चर ये शैलो फ्राइंग कहते हैं इसको. वी कुक पराठाज एंड डोसाज बाय शैलो फ्राइंग. इसमें थोड़ा कम ऑयल का यूज़ किया जाता है और इसको कहते हैं शैलो फ्राइंग. एंड द फिफ्थ वन इज़ बेकिंग. ब्रेड एंड केक्स आर कुक्ड बाय बेकिंग. इस तरह के जो आइटम्स होते हैं वो बेकिंग प्रोसेस के थ्रू ओवन में, माइक्रोवेव में इसको बेक किया जाता है. इसमें वाटर का यूज़ या फिर ऑयल डाल करके इस तरह से डीप फ्राई प्रोसेस नहीं होता है. बेकिंग प्रोसेस इज़ डन बाय माइक्रोवेव ओवन्स. ठीक है, तो बेकिंग, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, बॉइलिंग एंड स्टीमिंग, रोस्टिंग, these are the different ways of cooking food. Okay children, rest of the topic related to this chapter I will teach you in next class. Revise your chapters properly. Okay, thank you.